अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं आवाज़ ठीक है? एक कंफर्मेशन मैसेज दे देगा, थैंक यू। ओके, ठीक है, 2 मिनट। ओके, ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। हमने कल मैक्रो को स्टार्ट कर लिया था एंड वी स्टार्टेड विद द टॉपिक दैट इज नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, और मैंने आपको इस पर सवाल दिए हैं करने को। इन क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम पढ़ें जो मैंने आपको दिए हैं, इनको देखें, ये सवाल अटेम्प्ट कर लें। दिस विल मेक यू रेडी फॉर दिस पेपर। जो इसकी मैं जनरल वो बता देता हूँ कि सवाल है क्या ना एग्जैक्टली। तो सवाल ये है कि हाउ डू वी मेजर living standards, how do we measure living standards in an economy? सवाल सिर्फ इतना सर। तो मतलब हाउ वुड वी नो कि यार one country is better than the other? Oh, and by saying that one country is better than the other country, or one economy is better than the other economy, basically mean that the living standard, the quality of life in that particular country is better. अब अगर अब we are arguing कि the quality of life is in an economy is better than, is far better than the average quality of life of people in other countries, then to support our point we basically need certain evidence ना, कोई statistics चाहिए, कोई numbers चाहिए to back our point, और वो numbers क्या होंगे वो हमें देखना है। तो हमने शुरू किया था कल, हमने कहा था कि the number one go to method would be कि आप बोलें भाई कि जीडीपी फाइंड कर लें एंड कंपेयर द जीडीपी बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, और जीडीपी को हमने डिफाइन कर लिया था, सारी बातें कर ली थी उस पर। आप नीचे थोड़ा लिख दें जीडीपी होता है क्या है, और जीडीपी जो है वो नेशनल इनकम को किस तरीके से बताता है। बिकॉज बेसिकली इसके आर्ग्यूमेंट में हम कह सकते हैं कि हायर द जीडीपी, higher the GDP, higher the national income. ठीक है, this is one argument which we can make. ठीक है, इसके अलावा हमने फिर बोला कि however प्रॉब्लम आ गई, there are problems with GDP ना, there are problems with GDP, limitations, problems हमारा limitations, GDP on its own is limited to evaluate the living standard, limited to because of the constraint it has or because of the way it is calculated. GDP करता क्या है कि it just takes the
total value of all the goods and services that are being produced in an economy and adds them up. ठीक है. Limitation to the use of GDP. Use of GDP as a good measure. सही है ना, ये सारे मेजर है, मेजरमेंट्स हो रही है as a good measure. ठीक है. और वो जो limitations है उनको हम देख लेते हैं. Number 1, it does not consider, इसको पार्ट ए कर लेते हैं. It does not consider okay, so what does it does not consider the population size. ये हमने सीखा था. ठीक है. दूसरा भी कह सकते हैं कि it is based on nominal values. अच्छा, एक और पॉइंट जो कल हमने सही से नहीं देखा था वो ये था कि there is an underground economy that is operating. Underground economy का मतलब क्या, कोई बता सकता है? What would we mean by an underground economy? I think this word has appeared in our AS also. Underground economy से क्या मुराद है? ये एक प्रॉब्लम है while using GDP as a good measure, while treating GDP as a measure. जी, अंडरग्राउंड इकोनॉमी का मतलब बता सकता है? किसी को पता है? नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क. मैं बता देता हूँ. ठीक है. तो बेसिकली by underground economy what we mean कि this is that economy. Economy, the economic activities that do not come on record. That do not come on record. Economic activities that do not come on record are the activities that happen in an underground economy. मतलब कि obviously there would be certain people who would not show off what they are doing, what is being produced, how much they are earning, what are the transactions that are being taken place. People hide these transactions. Why? Because number one reason, they don't want to pay huge taxes, so they tell less. This एक dilemma है ना, जहाँ में, because the more you will earn, the more taxes you will pay. Obviously you will undervalue your understate your income. ठीक है. और आप नहीं बताएंगे कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जहाँ में जो हो रही हैं वो हुई भी या नहीं हुई, तो वो रिकॉर्ड में नहीं आएंगे. तो ऑब्वियसली वी कैन आर्ग्यू कि जीडीपी माइट बी अंडरवैल्यूड. इस वजह से जीडीपी इन इटसेल्फ माइट बी अंडरवैल्यूड. एक और प्रॉब्लम आ गई ना जीडीपी के साथ. ठीक है, ये सारी कहानी हो गई. और therefore we have other measures. GDP in itself is not a great measure. ये तीन reasons की वजह से, and we can add up reasons. आप बुक्स पढ़ेंगे आपको और reasons भी मिलेंगे. ठीक है, बड़ी तीन बेसिक रीजन काफी हैं. इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से. ठीक है. और therefore we have other options which include number 2 for example. Number 2 क्या है? Okay. जो हमने कहा कि पॉपुलेशन साइज कंसीडर नहीं करता, तो लेट्स ब्रिंग एवरीवन एट पार. जीडीपी पर कैपिटा निकाल लें आप. जीडीपी पर कैपिटा विच इज द सेम एज जीडीपी पर हेड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? द टोटल जीडीपी डिवाइड बाय द पॉपुलेशन साइज. ठीक है. ओके, जीडीपी पर कैपिटा हो गया. और फिर हमने, क्योंकि यहाँ नॉमिनल वैल्यूज का मसला था, जो कि
नॉमिनल वैल्यूज से मुराद ये है ना, ये इन्फ्लेटेड वैल्यूज हैं, these are the values affected by inflation. ठीक है, तो what we should do is find you another measure which would be real GDP. ठीक हो गया, real GDP. ओके ओके, ये तीन हमने तरीके देखे थे, और आप उसके आगे आप ये भी कह सकते हैं कि रियल जीडीपी पर हेड निकाल लें. ठीक हो गया. यार फॉलो कर रहे हैं, आवाज आ रही है तो ओके लिख के भेजना. मुझे आज मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा साफ सुथरा लिखने की. दिस इज द बेस्ट आई कैन डू. मुझे बताएं कि सही है, आवाज आ रही है, ठीक चल रहा है अभी तक? ओके ठीक है, पक्की बात है. ओके, लोग आ रहे हैं ऐसा ऐसा थोड़े बहुत. खैर ठीक है, पढ़ाना तो है मैंने, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम पढ़ाते रहेंगे भाई, और हम कोशिश करेंगे इसको हम रिपीट ना करें, हम आगे बढ़े. ठीक है, कि आई वांट द सिलेबस टू एंड एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम और चीजें देख सकें. तो ये, लेकिन ये जो है ना, ये पार्ट आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी. मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्रो का ये रिपीटेड पार्ट है, जब भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा देयर आर मल्टीपल मेजर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स है. ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं. 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, हम शुरू करते हैं. शायद कोई और लोग ज्वाइन कर लें. 2 मिनट वेट करेगा प्लीज, और कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट पे लिख सकते हैं.
ओके सॉरी, मुझे एक बार फिर से कंफर्म कर दें, आवाज़ ठीक आ रही है? हम शुरू कर रहे हैं। हमने अभी तक ऑलमोस्ट वही चीज़ें देखी हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी, थोड़ा-सा उसको साफ फॉर्म में लिख दिया, तो कल अगर आपने सही से कॉपी नहीं किया था तो दिस इज़ इट, इसको देख लें। हमने अभी स्टार्ट में जीडीपी, मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इसको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं बिकॉज़ दीज़ आर basically the indicators of a living standard, the statistics that are used to evaluate living standards. ठीक है, तो जीडीपी इज नॉर्मली द गो टू वन। तो जीडीपी को हमने डिस्कशन की और फिर जीडीपी के साथ साथ जीडीपी के और ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, तो ये आपके गुड 8-10 मार्क्स इसी में हो जाएंगे अगर आप उसको सही से लिखना जानते हैं। ठीक है, आई थिंक ज़्यादा भी हो सकते हैं। मूविंग ऑन, आप बोलेंगे यार देयर विल बी ऑब्वियसली अदर वेज जिससे आप इंडिकेटर्स फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली नंबर 5 से हम शुरू करते हैं। तो यू कैन से कि भाई जो जनरल वेज हैं वो तो क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखने के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑन एवरेज 60 इयर्स और यूएस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 इयर्स, देन ऑब्वियसली दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, जिस वजह से द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड। तो हम ये कह सकते हैं द हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन अ कंट्री, वी कैन अज्यूम द हायर वुड बी द लिविंग स्टैंडर्ड। तो एक तरीका ये है अदर देन जीडीपी। ठीक है, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझ में आ गया है तो जहां बात कर सकते हैं कुछ एक सिंपल मेजर्स की, मैं बहुत सारे लिख रहा हूँ फिर हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो वी कैन टॉक अबाउट डॉक्टर्स पर 1000, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर पर 1000। डॉक्टर पर 1000 बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन द इकोनॉमी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आपको एक तरीके से ये जो आंसर आएगा इसका वो बता देगा कि यार हाउ मेनी डॉक्टर्स आर यू प्रोड्यूसिंग। बात समझ में आ रही है? पर 1000, तो अगर आपका आंसर है 4 तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल 4 पीपल आर डॉक्टर्स, जो कि पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में लेस देन 1, ठीक है, वेरी वेरी मच लेस देन 1। ठीक है, तो आई थिंक 1 डॉक्टर पर 10,000 है हमारे यहाँ रेशियो। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि फॉर एवरी 10,000 पीपल इन द इकोनॉमी देयर इज 1 डॉक्टर टू ट्रीट देम। ठीक है, देन दिस ऑब्वियसली शोज कि यार कोई मसला है। ठीक है, अच्छा ये डॉक्टर पर 1000 के साथ आप और चीजें भी ऐड कर सकते हैं जो दुनिया जहाँ भी यूज होती हैं। मैं बता रही हूँ, बड़ा ओपन एंडेड सवाल है, दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड सवाल। इसको आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, बुक्स में सर्च कर सकते हैं, मार्केटिंग स्कीम्स की जरूर पढ़ लेगा ताकि आपको समझ में आए कि यार हो क्या रहा है। डॉक्टर पर 1000 के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अब देखें, अब मैं ज़्यादा शुरू किया हूँ हेल्थ की तरफ। ठीक है, ऑल दी ऑप्शन आर रिलेटिंग टू हेल्थ। पहले हमने हेल्थ की कोई बात ही नहीं की। ठीक है, ये सारे हेल्थ की बातें हो रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑब्वियसली हेल्थ, डॉक्टर पर 1000 रिलेटेड टू हेल्थ। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि भाई व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये क्या है आपके मुल्क के अंदर, दिस विल टेल यू द लिविंग स्टैंडर्ड। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी को पता है क्या होता है? बाय इन्फेंट्स वी मीन द न्यू बॉर्न बेबीज ना। मोर्टेलिटी मर जाना, मोर्टल, पाकिस्तान में या दुनिया भर में द रेट एट विच द न्यू बॉर्न बेबीज डाई एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको हम कहते हैं infant mortality rate. So for example, if any given day 1000 babies are being born, how many will survive on the very first day? A lot of babies will die on the very first day. Why? This is horrifying now. Why? Because we do not have the adequate living standards. Oh, sorry, the health standards. Living standards उसका एक overall form है, but the health standards in the country are very poor, especially in the rural areas. वहाँ आप जाएं तो the infant mortality rate is very high. Developed economies में आप देखेंगे the infant mortality rate is very low. Because why? Because they are investing in health and education. ठीक है, तो ये एक तरीके से एक मेजर हो सकता है infant mortality. Similarly, you can compare the birth rate and the death rate. The birth rate क्या है, death rate क्या है, ये सब आपको एक तरीके से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है ना, इफ यू कंपेयरिंग पाकिस्तान इंडिया फॉर एग्जांपल, तो आप इन सारी चीजों में नापेंगे पाकिस्तान इंडिया को। यू विल कंपेयर देम ऑन एवरीथिंग, नॉट जस्ट जीडीपी। फॉलो करें इस चीज को, रिलेटिवली इजी लग रहा है ये टॉपिक। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ जीडीपी को आपने सही से समझाना है, उसके बगैर आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है।
ठीक है, ये तो हम लिस्ट कर रहे हैं ना और उसको हम समझा रहे हैं, एक दो लाइन में समझा देंगे हर पॉइंट को, ठीक है। द मेन पॉइंट इज जीडीपी, ठीक है। और उसके अलावा मैं अभी आ रहा हूँ, हम बताते हैं, ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट आप, अच्छा एक सवाल ना और आता है, इस सवाल को मैं रिफ्रेम कर सकता हूँ, इस सवाल को मैं रिफ्रेम कर सकता हूँ, इसी क्वेश्चन को, और मैंने सवाल लिख दिया कि हाउ डू वी नो कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस, इसको मैं रेड में करता हूँ ताकि आपको सही से दिखे जी। व्हाट डिस्टिंग्विशेस a developed economy from a developing economy? Yes, right. So these are the reforms during the period of England. Then after this, on this basis, here that funds there. Era means period of influence. Era means period of. What distinguishes a developed economy from a developing economy? अगर ये सवाल होता तो जवाब exactly same होता, ठीक है। मतलब exactly same से मुराद है कि obviously you would reframe your wording, but you would include everything ना, GDP, you will include all these factors, and you will tell कि यार हम क्या यूज कर सकते हैं। Are you following? यहाँ तक तो मुझे ओके लिख के भेजें, important चल रहा है ये डिस्कशन। If you're following यहाँ तक तो मुझे ओके कंफर्मेशन भेज दें। Yes. कोई मसला है तो बता दें, आवाज सही आ रही है? Yes, 10 years. Decade means 10 years. अगर नहीं आ रही आवाज तो भी बता दें, ओके नहीं आया तो फायदा नहीं है। डॉक्टर्स कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? ये होता क्या, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि डॉक्टर्स पर 1000 अगर एक केस है ना, तो हम उसको ये समझा रहे हैं कि फॉर एवरी 1000 पीपल इन योर कंट्री, फॉर, या इसको ऐसे कर लेंगे, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर to serve every 1000 people, हर 1000 लोगों के लिए कितना, कितने हैं आपके पास? How many doctors are there to serve every 1000 people? For every 1000 people, how many doctors do you have? Obviously, अगर सिर्फ आपके एक डॉक्टर है that is supposed to serve 1000 people on average, तो कैसे सर्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सही है ना, there should be at least 20-30 doctors per 1000 ताकि वो डील करने सबको। तो जितना ज्यादा नंबर होगा ये, उतना ज्यादा हम बोलेंगे कि वी आर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, वो आपकी स्पेंडिंग एंड कंसर्न फॉर हेल्थ दिखेगा। समझ में आ रही है बात? तो डॉक्टर पर 1000 इज अ वे टू कैलकुलेट भाई हाउ मेनी, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ हेल्थ इन द इकोनॉमी। कोई मसला इसमें तो बता दें, वरना ओके लिख के भेज दो। ओके ठीक है। सिमिलरली वी हैव अनदर वे कि हम देखें भाई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ये तो हेल्थ ऊपर हमने, अच्छा हेल्थ को हम रुको, हेल्थ में एक दो और चीजें और डाल सकते हैं। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, पहले मैंने जीडीपी किया, फिर मैं हेल्थ पे आ गया। हेल्थ पे मैं जो जो समझ में आया मैंने लिख दिया, ठीक है। और उसमें आप चाहें तो आप एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन कर दें। मतलब आप इसमें बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा एक्सेसिबल बनाया हुआ है हेल्थ केयर को टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं बना रही, प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, तो जनरल पब्लिक को नहीं मिल रहा। देयर शुड बी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑपरेटिंग। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दिस इज इट।
Now they came out with the states and the profits were chosen against the purpose. So in 1969, Pakistan added a law to control keeping in mind, the Skandar Raja was also a military ruler, then ओके उसके अलावा हेल्थ के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं टू अदर पॉइंट्स जिसमें आप ये कर लें भाई कि हेल्थ की सैनिटेशन हो गया। इसके अलावा जो है आप ये कर लें कि हाँ हेल्थ हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट। हेल्थ में आप 2-4 पॉइंट और ले सकते हैं। मैं बताऊं ये बड़ा ओपन एंडेड आंसर है, यू कैन राइट एज मच एज यू वांट, ठीक है। देन वी कैन मूव ऑन टू अदर पार्ट्स ऑफ द जिसमें इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए हमें एक पूरा कर्व पढ़ना है जिसको हम कहते हैं लॉरेंस कर्व, ठीक है। लॉरेंस कर्व को मैं चाह रहा हूँ क्लास के अंदर ही पढ़ाऊँ ताकि आपको याद रहे कि हमें करना क्या, ठीक है। और इसके अलावा जो और चीज़ें हैं, देयर आर डिफरेंट इंडेक्स जिसमें HDI है। HDI इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूज करता है यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता ही है उसका, जो आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया को देख रहा है, उसका एम है कि दुनिया में पीस रहे, वो एक अलग कहानी वो कर क्या रहा है। बट खैर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है दैट इज यूज्ड बेसिकली टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। HDI पे जरा सर्च करेंगे है क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर ही, ठीक है। इसमें सर्टेन मेजर्स हैं, इसको आप पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं, 2-4 आप इसी पे लिख लें, क्योंकि ये जो है ना आपको बता दूं कि 2-3 एरियाज को टच करता है। एजुकेशन को भी टच करता है, इकोनॉमी की, हेल्थ को भी टच करता है, ठीक है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को भी करता है। तो ये कंबाइन है और आपको जान के शायद खुशी होगी कि ये HDI जो पूरी दुनिया में यूज होता है, दिस वाज कॉइन्ड बाय पाकिस्तानी डॉक्टर महबूब। उन्होंने ये HDI पूरा इंडेक्स बनाया और जो कि यूएन ने तो दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा देयर कैन बी अ लॉट ऑफ मेनी स्टैंडर्ड्स, जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई टीचर्स पर 1000 फॉर एग्जांपल, तो अब आपको एजुकेशन मिल जाएगी कि क्या एजुकेशन का क्या हाल है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट ऑन हेल्थ और एजुकेशन ये कितना है, ठीक है। एंड वी कैन कैरी दिस ऑन। मैं ये सोच रहा हूँ यार कि तो यही अभी हमें करना है। मैं इसी क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ पूरे इस वीक में, तो इसको और देख लें सही से। वहीं पे रोक रहा हूँ क्लास को। अब जो हम क्लास करेंगे उसमें मैं चाहूँगा कि आपको इसका एक आंसर टाइप दिखवा दूँ, फिर मंडे से हमें नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। अब जो मैं चाह रहा हूँ कि हम एक एक्स्ट्रा क्लास और रख लें फिजिकली, क्योंकि ऑनलाइन में इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो पता नहीं अगर आप सही से सुन रहे हैं तो आना तो चाहिए। और खैर फिजिकली क्लास हम बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह। मैं भी आज बात करूँगा एडमिन से, देन विल लेट यू नो द टाइमिंग्स। और इसमें इस वीक में मैं सिर्फ ये टॉपिक सही से खत्म करना है ताकि वी नीड अ प्रिपेयर्ड आंसर फॉर दिस, ठीक है, जो कि अल्लाह करे हमें रिप्रोड्यूस करने का मौका मिले। उसके अलावा मंडे से विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक्स इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग, जा सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज़।